वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस न्यू वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में रीड ओनली मेमोरी को कंप्लीटली डीपली स्टडी किया, बट आज हमको ये वीडियो में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट देना है। दैट कंसेप्ट इज रिलेटेड विद द स्पीड, साइज एंड कॉस्ट ऑफ द मेमोरी सिस्टम। बट उसको हम देखने के पहले एक रीड ओनली मेमोरी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ कंसेप्ट था वो आपके सामने रखता, और उसके बाद हम स्पीड, कॉस्ट और साइज रिलेटेड विद द मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो हम बाद में देखने वाले हैं। सो द रीड इन टर्म्स ऑफ रॉम, there is again one terms, that is EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory, that we can also see in the last video. In terms of the EEPROM, we can say that to erase the content of EEPROM, they have to be exposed to the ultraviolet light. They have to be exposed by ultraviolet light. We already told that there are sometimes in terms of electrical erasure, by the electrical signal we can erase the data. By using ultraviolet light, we can also erase the data of the read-only memory, which is physically removed from the circuit. और वो जो पूरी प्रोसेस है उसके लिए आपको फिजिकली और पर्टिकुलर मेमोरी सर्किट जो है उसको बाहर निकाल के फिजिकली रिमूव करके उसको उस प्रोसेस को करवाया जाता है। दैट EEPROMs, the content can be stored and erased electrically. Electrically information stored की जाती है और electrically information उससे erase की जाती है. That is all related to the electrically erasable programmable read-only memory. Then the important thing is that flash memory. We are also studying some basic points related to the flash memory in the last video. But again, we can try to revise that certainly. It has a similar approach to the EEPROM. EEPROM सभी का ही flash memory तकरीबन same है. The read the contents of a single cell, but write the contents of the entire block of a cell. देखिए यहाँ पे रीडिंग करने की और राइट करने की प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। आपको अगर मेमोरी ये फ्लैश मेमोरी से रीड करना होगा ना, देन एट दैट टाइम यू हैव टू रीड द कंटेंट ऑफ द सिंगल सेल। एक सिंगल सेल के कंटेंट आपको रीड करने होंगे, बट व्हाइल राइट देन इन दैट केस यू कैन राइट द एंटायर ब्लॉक ऑफ सेल। पूरा का पूरा सेल का जो ब्लॉक है उस पर्टिकुलर ब्लॉक को आप राइट कर सकते हैं। Then the flash devices have greater density. The flash device has greater density, it means that it has a higher capacity and the low storage cost per bit. The power consumption of flash memory is very low. That was a very important feature of the flash memory, and because of that, this flash memory will be used as more in the multiples of the computer systems. That the power consumption of this flash memory is so very low, making it attractive to use in the equipment that is बैटरी डिबग। जो कुछ इक्विपमेंट बैटरी पे चल रहे हैं उसमें करके ये फ्लैश मेमोरी का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि उसको सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो फ्लैश मेमोरी को जो पावर सप्लाई कम लगता है करके बैटरी ऑपरेट सिस्टम पे भी उसका मैक्सिमम यूज किया जाता है। अ सिंगल फ्लैश चिप आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज। एक फ्लैश मेमोरी से आप ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकते, बट फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज द मल्टीपल फ्लैश मेमोरीज फॉर टू स्टोर द डेटा एंड ऑल। So the large memory modules are implemented using like the flash cards, flash drives. These are the different things that we can that is to be developed and that we can use for to storing the information in the large amount. So this is all about the read-only memory. We have to discuss some important topics like the speed, size, and the cost. That was a very important topic in terms of this unit number 2 of memory unit. बिकॉज नॉर्मली अभी तक हमने जितने भी मेमोरी कंसेप्ट देखे, मेमोरी को स्टडी किया है, ये अगर हम एक्चुअली फिजिकली अगर किसी सिस्टम में लगाना चाहते हैं, इसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, तो कोई भी मेमोरी हो, मेमोरी के रिलेटेड आपके दिमाग में उसके तीन इंपॉर्टेंट फीचर, तीन इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन आपके सामने आने वाले हैं। और वो तीन इंफॉर्मेशन फीचर या तीन इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस को अगर हम बोला जाए तो तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स या स्पेसिफिकेशंस है। स्पीड पहला वाला तो है इंपॉर्टेंट स्पीड, second one is the size, and third one is the cost. These are the three important terms which are related with the memory. अब फर्स्ट स्पीड के बारे में अगर बोला जाए तो स्पीड इज नथिंग बट अगर आप मेमोरी के साथ डील कर रहे हैं, एंड देन द इंपॉर्टेंट टर्म इज दैट स्पीड। सो स्पीड इज रिलेटेड विद द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन।
सबसे पहले तो, क्योंकि क्या है कि मेमोरी के साथ आप दो ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक तो रीड कर रहे हैं मेमोरी में, या मेमोरी मेमोरी से कुछ रीड कर रहे होंगे, या मेमोरी में कुछ ना कुछ राइट कर रहे होंगे। तो मेमोरी में आपको रीड करने के लिए लगने वाला टाइम एक इम्पोर्टेंट, और मेमोरी में आप कुछ लिख रहे हैं, तो मेमोरी में राइट करने के लिए आपको लगने वाला टाइम, और मेमोरी से आप कुछ रीड कर रहे हैं, तो मेमोरी से रीड करने के लिए लगने वाला टाइम, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहते हैं। और यही टाइम पीरियड के हिसाब से वहां पे इसका स्पीड ऑफ कैलकुलेशन निकाला जाता है, स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स while selecting the memory for any circuitry. So this is a very important things if we can try to select any particular memory. So that was the speed of the operations in terms of the memory. Then the next is important is the size. Now, the today's world is of information world that you already know. We have lots of information, and as we have lots of information, we normally require the memory having a large size. We can't require a memory having a small size, because as we know that as the memory size is much more, we can store the information as much more than that. ठीक है, जितनी साइज ज्यादा है उतनी आप उसमें इंफॉर्मेशन छोड़ सकते हैं, और आप सभी के पास लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो आपको उसको मेमोरी की जरूरत है ही है। मैंने आप लास्टली भी उसका एग्जांपल दिया था। आप कभी भी कोई मोबाइल खरीदने जाते होंगे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन आप वहां पे वही लिखते हैं कि मेमोरी, सर व्हाट इज इट मेमोरी कैपेसिटी, व्हाट इज इट्स रॉम साइज, व्हाट इज इट रैम साइज। ये सारी चीजें क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपके पास आपके एंड्रॉइड मोबाइल्स में इतना सारा वर्नाकुलर डेटा अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको साइज ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स लगता है। और अगर मेमोरी के बारे में बोला जाए, तो उससे भी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा फीचर्स ये है कि उसकी कॉस्ट। आपको स्पीड तो रिजल्यूशन चाहिए ही, इसके साथ साथ साइज भी चाहिए, और उसी के साथ साथ आपको वहां पे कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स वहां पे है। So that was a very important feature for that. So a big challenge in the design of the computer system is to provide a sufficiently large memory with a reasonable speed and at an affordable cost. And that was a very important thing. कि सबसे बड़ा डिजाइनर जो है, कंप्यूटर सिस्टम की जो डिजाइनर है, उनके लिए सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट एम हम बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट टारगेट हम बोल सकते हैं कि लार्ज मेमोरी साइज चाहिए, उसकी स्पीड भी रिजनेबल स्पीड चाहिए, और ये सब मिला के उसकी जो मेमोरी की जो कॉस्ट है वो भी अफोर्डेबल चाहिए। एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ द मेमोरी, दैट वी रिक्वायर्ड हाई स्पीड, लार्ज साइज एंड लो कॉस्ट memory. That was important. We can compare about a static RAM, dynamic RAM and magnetic RAM. That there is in the static RAM you can say that the very fast but expensive, because of a basic SRAM cell has to be the complex circuit, making it impossible to pack a large number of cells onto the single chip. If we can discuss about the dynamic RAM, it is a simpler basic cell circuit, hence are much less expensive but significantly slower than static RAM. That was important. We can already see that the difference between static and dynamic RAM. And the next is the magnetic disk. That storage provided by the dynamic RAMs is higher than the static RAM, but is still less than what is necessary. The secondary storage, such as the magnetic disks, provide a large amount of storage, but it is a much slower than the dynamic RAM. That was again a thing. So क्या है एक्चुअली कि मैक्सिमम मेमोरीज में स्पीड ऑफ ऑपरेशन अच्छा है, बट कॉस्ट ज़्यादा है, या साइज कम है, कॉस्ट कम है, स्पीड ज़्यादा है, वर्नाकुलर. So that was a different terms, different scenario you can see in a different memory. So this is all about the speed, size and cost related with the different parts of memory. Thank you very much.